صدیوں پرانی بات ہے۔ بغداد میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا۔ یہ سوداگر تجارت کی غرض سے دور دراز علاقوں کا سفر کرتا اور 4-5 ماہ بعد اپنے گھر واپس لوٹتا۔ ایک دن یوں ہی معمول کے مطابق وہ تجارت کی غرض سے سفر پر روانہ ہونے لگا تو اس کا چھوٹا بیٹا دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ لپٹ گیا اور توتلی زبان میں باپ سے کہنے لگا، بابا آپ نہ جائیں، آپ گھر پر ہی رہیں، میں آپ کے ساتھ کھیلنا چاہتا ہوں۔ سوداگر نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور پیار سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ بچہ ضد کرنے لگا اور وہ یہی کہتا رہا کہ بابا آپ نہ جائیں، آپ اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیں۔ سوداگر کی بیوی جو رسوئی میں کھڑی چپ چاپ سب کچھ دیکھ رہی تھی، وہ اپنے شوہر کے قریب آ کر کہنے لگی، آج سے پہلے آپ جب بھی سفر پر گئے ہیں تو میں نے کبھی بھی کچھ بھی محسوس نہیں کیا، لیکن آج میرے دل میں عجیب سی وحشت نے گھر کر رکھا ہے اور ہمارا بیٹا بھی نہ جانے کیوں ضد کر رہا ہے۔ اس دفعہ آپ نہ جائیں تو بہتر ہے، اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ بیوی کی بات سن کر سوداگر تھوڑا سا جذباتی ہو کر کہنے لگا، وہ تو بچہ ہے، تم کیوں بچوں جیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں ایسی باتوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتا، ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے، غرض یہ کہ اس نے کسی بھی بات پر کان نہ دھرے۔ اور سب کو خدا حافظ کہہ کر گھر سے باہر نکل آیا۔ گھر سے باہر اس کا قافلہ پہلے ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھا اور قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ وہ سارا دن سفر کرتے رہے۔ رات کے وقت وہ ایک جنگل کے پاس پہنچے جہاں انہوں نے قافلے کے ساتھ پڑاؤ ڈال لیا۔ ابھی وہ وہاں پر بیٹھ کر اپنی تھکن دور کر رہے تھے کہ کچھ لٹیرے وہاں پر آ گئے۔ ان ڈاکوؤں نے للکار کر کہا، اے قافلے والو، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں تو ہمیں اپنے سردار سے ملوا دو، اگر تم لوگوں نے ہماری بات نہ مانی تو ہم تمہارا سارا قافلہ لوٹ لیں گے۔ قافلے میں موجود ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، ہمیں اپنے سردار کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا سردار بہت نیک دل انسان ہے، ہمارا سردار سامنے ہی خیمے میں آرام کر رہا ہے۔ وہ ڈاکو اس شخص کے ساتھ سردار کے خیمے تک گئے۔ وہ شخص خیمے کے اندر داخل ہوا اور سوداگر کو جگا کر کہنے لگا، اے مالک، کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سوداگر نے جواب دیا، تم ایسا کرو، ان سب کو اندر ہی بلا لو۔ سردار کی آواز سن کر وہ سارے ڈاکو خیمے کے اندر داخل ہو گئے۔ سوداگر نے سلام دعا کے بعد سب کو خیمے میں بٹھایا اور ان سے کہنے لگا، کہیے اس بندہ ناچیز سے آپ کو کیا کام ہے؟ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ سوداگر کی بات سن کر وہ ڈاکو کہکا لگا کر ہنسنے لگے۔ ان میں سے ایک کہنے لگا، جناب آپ تو کیا، ہمیں تو کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ ہمارا کاروبار ہی ایسا ہے۔ سوداگر نے دل میں سوچا، یہ سب لوگ تو خطرناک لگ رہے ہیں، اگر ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ سوداگر بناوٹی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہنے لگا، میں آپ کی بات سمجھا نہیں کہ آپ کس طرح کا کاروبار کرتے ہیں، آپ صاف لفظوں میں بتائیں کہ آپ کا ہمارے ساتھ کام کیا ہے۔ ان میں سے ایک ڈاکو اٹھا اور کہنے لگا، اے سوداگر، صاف سی بات یہ ہے کہ ہم لٹیرے ہیں۔ اس جنگل سے جو بھی قافلہ گزرتا ہے ہم پہلے اس کے سردار سے بات کرتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی ضروریات رکھ دیتے ہیں۔ اگر وہ ہماری بات مان کر ہماری ضروریات کو پورا کر دے تو ہم اس کے قافلے کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے اور اپنی ضرورت کا مال لے کر یہاں سے نکل جاتے ہیں، اور اگر کوئی انکار کرے تو ہم اس کا قافلہ بے دلی سے لوٹ لیتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے معمول کی کارروائی کے مطابق تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر تم نے ہمیں معقول رقم ادا کر دی تو ہم تمہارے قافلے کو ہاتھ تک نہیں لگائیں گے، تم سکون سے اپنی رات یہاں بسر کر سکتے ہو۔ لٹیروں کا مطالبہ سن کر سوداگر پریشان ہو گیا اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد بولا، دیکھو میں اتنا بزدل نہیں ہوں کہ میں تم لوگوں سے ڈر جاؤں گا، میرے پاس کوئی حرام کا مال نہیں ہے اور نہ ہی میرے ساتھیوں کے پاس کوئی فالتو دولت ہے جو تم جیسوں کے حوالے کر دی جائے۔ سوداگر کا اتنا کہنا تھا کہ وہ ڈاکو اپنی جگہوں سے اٹھ گئے اور نیام سے تلواریں نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیں۔ سوداگر نے اپنے قافلے کے ساتھیوں کو پکارا اور ان سے کہنے لگا، ہم انہیں ایک پائی نہیں دیں گے اور ان ظالموں کا مقابلہ کریں گے، ہمارے انجام چاہے جو بھی ہوں، لیکن ہم اپنے مال کی حفاظت کریں گے، اس لیے ٹوٹ پڑو ان پر۔ سوداگر کا اتنا کہنا تھا کہ اس کے قافلے کے ساتھیوں نے ڈاکوؤں پر حملہ کر دیا۔ وہ کافی دیر تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے۔ اس دوران دونوں گروہوں کے لوگ بھی زخمی ہوئے، لیکن آخرکار قافلے کے لوگ ڈاکوؤں پر غلبہ پا گئے۔ انہوں نے ڈاکوؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ڈاکوؤں نے جب دیکھا کہ قافلے کے لوگ ان پر باری پڑ رہے ہیں تو انہوں نے وہاں سے فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن ان کی ایک نہ چلی۔
सारे लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस लड़ाई में सुदागर बहुत जख्मी हो गया। सुदागर के दिल में अपनी बीवी और बच्चे का ख्याल आने लगा कि शायद यही वो खतरा था जो उन दोनों के दिल में आ रहा था, जिसकी वजह से वो मुझे सफर पर जाने से रोक रहे थे। सुदागर जख्मों से चूर था और उसे अपनी जिंदगी की मजीद उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अल्लाह अल्लाह करके रात गुजरी। सुबह होते ही सुदागर ने काफले को रवाना होने का हुक्म दिया। इस काफले में और भी लोग जख्मी थे, इसलिए उनमें ज्यादा सफर करने की ताकत नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता वो काफला एक शहर में दाखिल हुआ। शहर में पहुंचकर सबसे पहले जख्मियों को तबीब खाने ले जाया गया और बाकी के लोग जो काफले के साथ माल लाए थे उसे मुख्तलिफ बाजारों में फरोख्त करने लगे। जितने दिन उन्हें तिजारत करने में गुजरे उतने दिनों में जख्मियों की कुछ हालत बेहतर हो चुकी थी। सुदागर भी सेहतयाब हो चुका था। उसने अपने साथियों को एक जगह पर इकट्ठा किया और उनसे कहने लगा, हमारे पास जो कैदी हैं, तुम लोग उनके साथ क्या मामला करना चाहते हो? क्या हम उन्हें माफ कर दें? जिस पर काफले के लोग कहने लगे, हमें आप पर हैरत हो रही है। ये जालिम हमारी जान लेने पर तुले हुए थे और आप अभी उन्हें माफ करने का सोच रहे हैं। ना जाने उन्होंने अब तक कितने मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया होगा और कितने लोगों से उन्होंने लूटमार की होगी। अगर हम इन्हें मौत की सजा नहीं दे सकते तो कम से कम हमें इन्हें आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए। हमें इन्हें गुलाम बनाकर बाजार में फरोख्त कर देना चाहिए। जिस पर सुदागर हंसा और कहने लगा, अगर हम इनके साथ सख्ती बरतेंगे तो ये कभी नहीं सुधरेंगे और पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे, और अगर हमने इनके साथ नरमी वाला मामला किया तो हो सकता है ये राह रास्त पर आ जाएं। तुम मेरी बात मान लो, अगर वो ना बदले तो तुम फिर इन्हें जो मर्जी सजा दे देना। काफले के लोगों ने अपने सरदार की बात मान ली। इसके बाद सरदार ने सारे डाकुओं को अपने पास बुलाया और उनसे मुखातिब होकर कहने लगा, तुम लोगों को क्या सजा दी जाए? हमारे साथियों का कहना है कि तुम लोगों को सरेआम लटका दिया जाए या फिर गुलाम बनाकर बाजार में फरोख्त कर दिया जाए। तुम बताओ, क्या तुम इस सजा के लिए तैयार हो? सरदार के ये अल्फाज सुनकर वहां पर सन्नाटा तारी हो गया। सजा का सुनकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर सुदागर ने कहा कि इन सबको तख्ता-ए-दार पर लटकाने की तैयारी की जाए। ये अल्फाज सुनकर वो डाकू कांप उठे। उनमें से एक बोला, सरकार हमें माफ कर दें, हम जिन कबाइल में पैदा हुए हैं वहाँ हमारे बड़े सालों से ये काम करते हुए आ रहे हैं। हमें चोरी और डाकाजनी के अलावा कुछ नहीं सिखाया गया। हम में से अगर कोई ये काम छोड़कर मेहनत मजदूरी करने की कोशिश करता है तो कबीले वाले उस पर हंसते हैं। हम ये काम मजबूरी में कर रहे हैं। अगर आपने हमें सजा दी तो हमारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। सुदागर दिल में सोचने लगा कि मैं जो चीज सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। इन लुटेरों की होश ठिकाने आ गई है और ये सुधर सकते हैं। अगर हम इन्हें साथ रखें और तिजारत सिखाएं तो शायद ये वाकई ही सुधर जाएं। इसके बाद सुदागर ने उनसे कहा, ठीक है, तुम्हें एक शर्त पर माफी मिलेगी। सबसे पहले तुम्हें अपने गुनाहों की तौबा करनी होगी और इसके बाद हमारे साथ रहना होगा, फिर ही तुम्हें माफ किया जाएगा। वो सारे के सारे फौरन सजदे में गिर गए और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से माफी मांगने लगे। ये देखकर सुदागर को खुशी हुई। वो सारे के सारे बिल्कुल ऐसे बन गए थे जैसे वो सच्ची तौबा कर चुके हैं। सुदागर ने उन्हें खोलने का हुक्म दे दिया। उनके लिए एक अलहदा खैमे का इंतजाम किया गया। तिजारत मुकम्मल करने के बाद वो सारे काफला लेकर वापस रवाना हो गए। कुछ दिन सफर करने के बाद वो वापस उसी जंगल के पास पहुंचे जहां उन पर लुटेरों ने हमला किया था। उस जंगल में पहुंचकर वो लुटेरे सुदागर से कहने लगे, सरदार, इस जंगल से थोड़ी ही दूर हमारे कबीले आबाद हैं। पिछले काफी दिनों से हम आपके पास हैं, इसलिए हमारे बीवी बच्चे परेशान हो रहे होंगे। आप हमें कुछ वक्त की मोहलत दें ताकि हम उनसे मुलाकात करें और उन्हें अपनी खैरियत के बारे में बता सकें और उनके शुकूक व शुबहात को दूर कर सकें, और फिर हम उन्हें यह भी बता देंगे कि हम तिजारत के घर से काफले के साथ बगदाद रवाना हो रहे हैं। सुदागर ने उन्हें जाने की इजाजत दे दी और साथ में ये भी कहा, अगर तुम लोग हमारे साथ नहीं जाना चाहते तो हमें पहले ही बता दो ताकि हम तुम्हारा इंतजार ना करें और हम वक्त पर अपने काफले को लेकर बगदाद पहुंचे। लेकिन एक बात याद रहे, आइंदा कभी भी यहाँ से गुजरने वाले काफले को तुम लोग तंग नहीं करोगे। इस बार तो तुम लोग बच गए हो। अगली दफा अगर किसी काफले का सरदार सख्त दिल हुआ तो वो तुम्हारे पर खच्चे उड़ा देगा, इसलिए मेरी बात याद रखना। वो सारे सुदागर के कदमों में गिर गए और जान बख्शी के लिए उनका शुक्रिया अदा करने लगे और कहने लगे, हम ना तो कभी आपका एहसान भूल सकते हैं और ना ही इसका कर्ज चुका सकते हैं। सुदागर उन्हें खुदा हाफिज कहने लगा तो उनमें से एक लुटेरा बोला, सरदार, आप भी हमारे साथ चलें, ये मेरी दिली ख्वाहिश है। पहले तो सुदागर ने मना कर दिया,
लेकिन जब बाकी लोगों ने भी इसरार करने लगे तो सुदागर मान गया। काफले के सारे लोग अपने अपने खैमों में आराम करने लगे। सुदागर काफले के लोगों को बताए बगैर डाकुओं के साथ उनके कबीले की तरफ चल पड़ा। काफी देर सफर करने के बाद सुदागर डाकुओं से कहने लगा, तुम लोग तो कह रहे थे कि तुम्हारा कबीला जंगल के बिल्कुल पास है, लेकिन हमें सफर करते हुए कितनी देर हो गई है और अभी तक तुम्हारा कबीला नहीं आया। आखिर तुम्हारा कबीला कितनी दूर है? उनमें से एक ने जवाब दिया, बस वो पास ही हमारा कबीला है, आप परेशान ना हो, हमारे होते हुए आपको यहाँ पर कोई खतरा नहीं होगा। वो फिर से घोड़े दौड़ाने लगे। कुछ सफर करने के बाद सुदागर ने अपना घोड़ा रोका और फिर उनसे पूछने लगा, तुम लोग तो कह रहे थे कि कबीला पास ही है, लेकिन अभी तक तुम्हारा कबीला नजर क्यों नहीं आया? मैं अब मजीद तुम्हारे साथ सफर नहीं कर सकता। मैं अपने साथियों को बताए बगैर तुम लोगों के साथ आया हूँ, इसलिए मैं बेयारों मददगार यहाँ पर मरना पसंद नहीं करूंगा। तुम लोग आजाद हो, तुम्हारा जी चाहता है तो हमारे साथ आ जाना। ये कहकर सुदागर वापस मुड़ने लगा तो उन्होंने सुदागर को घेरे में ले लिया और कहने लगे, डाकुओं की बस्ती में आकर तुम बचकर कैसे जाओगे? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, वरना हम तुम्हें यहीं मौत के घाट उतार देंगे। सुदागर को अपने फैसले पर अफसोस होने लगा कि उसने किन लोगों पर एतबार कर लिया है। वो लोग तादाद में ज्यादा थे। उनमें से एक कहका लगाकर बोला, क्या सोच रहे हो? कल हम तुम्हारे कैदी थे, आज तुम हमारे कैदी हो। तुमने हमारे साथ जो अच्छाई की है इसका बदला तुम्हें ऊपर जाकर मिलेगा। सुदागर को यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने एक ठंडी आह भरी और मायूस होकर कहने लगा, तुम लोग फिरौन सिर्फ इंसान हो, तुम्हें कोई भी राह रास्त पर नहीं ला सकता। तुम लोगों के दिलों पर मोहर लग चुकी है। मुझे अपने काफले वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। अभी सुदागर कोई और बात करता कि उनमें से एक डाकू ने सुदागर के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया और कहने लगा, इससे आगे तुमने एक भी लफ्ज कहा तो हम तुम्हारी जुबान खींच लेंगे। उन्होंने सुदागर को बरगद के एक दरख्त के नीचे बांध दिया और वापस जंगल की तरफ रवाना हो गए, जहां काफले के लोग आराम कर रहे थे। उन्होंने सोए हुए काफले पर हमला कर दिया। काफले के लोगों को किसी भी हमले की उम्मीद नहीं थी। अचानक हमले से वो घबरा गए और अपना दिफा भी ना कर सके। उन लुटेरों ने काफले के सारे लोगों को बांध दिया और सारा माल मसरूका लूटकर वहां से फरार हो गए। इस काफले में एक शख्स पानी की तलाश में गया हुआ था। जब वो वापस आया तो काफले के लोगों को बंधा हुआ देखकर डर गया। वो भागकर उनके पास गया और उन्हें बारी बारी खोलने लगा। वो सारे अफसुर्दा हालत में थे। उनमें से एक कहने लगा, सरदार के खैमे की तरफ चलो ताकि उसकी खैरियत भी मालूम कर सके। वो फौरन सुदागर के खैमे की तरफ पहुंचे, लेकिन सुदागर का खैमा बिल्कुल खाली था, जिसे देखकर उन्हें सख्त गुस्सा आया और वो ये सोचने लगे, लगता है उनका सरदार भी उन लुटेरों से जा मिला है, इसीलिए उसने लुटेरों को माफ करने के लिए कहा था और अब वो हमारे लूटे हुए काफले में से अपना हिस्सा वसूल कर रहा होगा। अगर ऐसा ना होता तो वो भी यहाँ अपने खैमे में बंधा हुआ होता। उन्हें कोई खबर नहीं थी कि सुदागर कहाँ है, इसलिए उन्होंने उसे ढूंढने की भी जहमत ना की और जंगल से पैदल ही भूखे प्यासे बगदाद पहुंच गए। बगदाद पहुंचकर उन्होंने काजी की अदालत में अपने सरदार के खिलाफ मुकदमा पेश करवा दिया। वो काजी से इंसाफ मांगने लगे। काजी भी सोच में पड़ गया कि अगर ये बात झूठी होती तो सिर्फ चंद लोग ही मुकदमा लेकर आते, लेकिन यहाँ तो पूरे का पूरा काफला यकजुबान होकर अपने सरदार के खिलाफ गवाही दे रहा है। हो सकता है उसने वाकई ही डाकुओं के साथ मिलकर काफला लूट लिया हो। इसलिए काजी ने सुदागर का भी इंतजार ना किया और फैसला सुना दिया। सुदागर की सारी जायदाद और माल बेचकर काफले के लोगों में तकसीम करवा दिया। सुदागर की बीवी और उसके बेटे को घर से निकाल दिया गया और वो दोनों बेचारे दरबदर की ठोकरें खाने लगे। सुदागर की बीवी अपने बेटे को लेकर अपने भाई अकबर के घर चली गई और जाकर उसे मुकम्मल वाकया सुनाया। अकबर ने बहन को तसल्ली दी और कहने लगा, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे शोहर को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। दूसरी तरफ सुदागर वहीं दरख्त के नीचे बंधा था, जो भूख प्यास की शिद्दत से बेहोश हो चुका था। उसी रास्ते से काफला गुजर रहा था। काफले के सरदार ने जब सुदागर को दरख्त के साथ बंधे हुए देखा तो फौरन नीचे आया और उसे खोलकर अपने काफले के साथ ले गए। शहर पहुंचकर उसने सुदागर को गुलाम बनाकर भेज दिया। सुदागर जो एक काफले का सरदार था और आज तक अमीरी की जिंदगी गुजारता आया था, वो एक गुलाम बनाकर फरोख्त कर दिया गया था। लेकिन सुदागर ने सब्र किया। वो शख्स जिसने सुदागर को खरीदा था, सुदागर ने उस पर कुछ भी जाहिर ना किया कि वो कौन है और कहां से आया है। वो शख्स सुदागर को अपने साथ दुकान पर ले जाता और उसे सारे काम करवाता। एक दिन अकबर उसे ढूंढता ढूंढता उसी शहर जा पहुंचा। वो एक घोड़े पर सवार बाजार में सुदागर की तलाश में भटक रहा था कि तभी सुदागर की नजर उस पर पड़ी।
सुदागर ने उसे जल्दी से आवाज दी। सुदागर की आवाज सुनकर उसका मालिक भी परेशान हो गया और सोचने लगा कि ये गुलाम तो कभी किसी से बात भी नहीं करता था, आज ये कैसे बोलने लगा। सुदागर का मालिक उन दोनों को बुलाकर पूछने लगा कि तुम एक दूसरे को कैसे जानते हो। सुदागर मालिक की बात को टालने लगा, लेकिन फिर अकबर ने उसे सारा माजरा सुना दिया। सुदागर ने जब देखा कि अब छुपाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उसने अपने साथ बीता भी सारा वाकया सुना दिया, जिसे सुनकर उसके दिल में रहम आ गया। उस शख्स ने सुदागर और अकबर को अपने साथ लिया और काजी की अदालत में पहुंचा और सारा माजरा काजी को सुनाया। काजी को भी सुदागर पर बहुत रहम आया। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इन सारे लुटेरों को गिरफ्तार करके मेरे पास नहीं बल्कि बगदाद के काजी के पास ले जाओ, क्योंकि हो सकता है वहां के लोग सुदागर को गलत समझ रहे हों, इसलिए उन्हें वहां पर पेश किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सुदागर ने सिपाहियों को साथ लिया और जंगल से होते हुए लुटेरों की बस्ती की तरफ रवाना हो गया। दिन का वक्त था और लुटेरे अपने घरों में ही ठहरे हुए थे। सिपाहियों ने बड़ी होशियारी से तमाम लुटेरों को दबोच लिया और उन्हें बगदाद के काजी की अदालत में पेश किया गया। इसके बाद सुदागर ने अपनी सफाई पेश की और उन लुटेरों ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। काजी को अपने किए गए फैसले पर शर्मिंदगी होने लगी। काजी ने सुदागर से माफी मांगी और उन लुटेरों को मौत की सजा सुना दी और सुदागर का जो भी नुकसान हुआ था उसे शाही खजाने से पूरा करवा दिया। सुदागर ना सिर्फ अपने काफिले के लोगों में सुरखरू हो चुका था, बल्कि पूरे बगदाद में उसकी इज्जत और ईमानदारी के चर्चे होने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।